बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अनवर है और मैं लाहौर पाकिस्तान से बात कर रहा हूं। और आज एक बार फिर हम एक बहुत एक्साइटिंग शो जिसका नाम 3 लैंग्वेजेस विद वसीम है उसके साथ हाजिर हैं। और हमेशा की तरह आज का शो भी बहुत सरप्राइजेस लेकर आया है। हमारे होस्ट कौन है, गेस्ट कौन है और लैंग्वेजेस कौन सी है, आज अभी हमें पता चलेगा। और इस शो का जो पर्पस है कि रिमूव लैंग्वेज बैरियर को खत्म करना और एक प्लेटफॉर्म में तमाम डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले फाउंडर्स जो कि इससे पहले अपने अपने ही प्लेटफॉर्म पर अपनी लैंग्वेज में बात करते, एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा करना यूनिटी के लिए। हमारा पर्पस ये है कि फाउंडर्स की यूनिटी के लिए हमने ये शो स्टार्ट किया। इसका रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा मिला है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज वसीम अनवर फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। टुडे we are yet back again with an exciting show, 3 languages with Wasim. The purpose of this show is remove language barrier. So let's start this show today. Let's see the who is the today host. So I would like to call our first host. She's no need. She no need require any introduction. Mamta Kulkarni ji from India. So please introduce yourself, Mamta ji, and tell us which language you are representing. Namaste sabhi ko and good morning all of you and hello all of you. I am so excited to be over here. My name is Mamta Kulkarni. I'm residing at Pune in the state of Maharashtra in India country. And I am so excited as this is a totally new format, and the way Wasim Bhai has introduced that we are going to wipe out all the boundaries and all the whatever the limits are there, we are going to merge in true sense as a global company. So I myself would be introducing one guest in English language, and I would be very happy to introduce to him. About myself, especially, I would be telling you that I am trained Indian classical vocalist, and I'm waiting for Academy to consider myself as a guru over there, and want to establish a huge group of students across the globe. This is the only one opportunity that I would be working with my passion and my hobby, and I would be introducing my great tradition of our country, Indian classical music, which would be helpful to each one of them, not only for the hobby or not only as an art, but also to uplift the education and the strategic education. So I had many plans about this. OConnect also I'm going to use for my teaching, and I would be very happy that artificial intelligence is going to help me in entire this thing and minimize my entire stress of my life, that I was searching the great and unparalleled platform, and I have bought this in OnPassive. I'm so proud to be the founder of OnPassive. Thank you very much. Over to Wasim Bhai. Thank you, Mamta ji, for this brief introduction. And we go to the next, our host. I would like to call Pramod ji. He's also from India. Hello, Pramod ji. Please introduce yourself and which language you are representing today. Hello, everyone. Good morning to all. Today, thanks to Wasim sir, you give me this opportunity to talk with all क्या बोलते हैं आप उसको लीडर्स के साथ बात करने के लिए मौका मिला. Okay, I am Pramod Brahmankar, Pune, belong to India. Today I am representing Marathi language. Thank you very much. Thank you very much, Pramod ji. I would like to call our last host, but not least, Miss Sampa Sarkar from India. Hello, Sampa ji. How are you? And you are again back with in our show. So today, which language you are representing? Thank you, Wasim ji. Thank you very much. Hello everyone. Good morning. Today I am Shampa Sarkar, West Bengal, India. Today I am representing the Hindi language. Our exciting show.
three languages with Wasim. I'm very excited. Thank you. Over to Wasim, sir. Thank you, Sampaji. So let's start the show. So please, Mamtaji and other hosts, introduce your guest and ask the question and continue the show. So I would like to call Mamtaji. Mamtaji, let's start the show. Thank you very much. Thank you very much, Wasim Bhai, to hand over me this show. I am going to introduce my guest, and he will be speaking in language English. He is Professor Sahadev Jadhav, as the professor, and he will be introducing himself about him. But I would like to tell something about him that I have observed whatever is a very composed personality and has an ability to explain the things about himself also, and of course about the vision of OnPassive. Whenever I listen to him, I was impressed with the composed way of delivering his point, with the proper presentation, with the proper words to be used so that it can be conveyed to the people, that whatever he wanted to explain it is already reached to them. He is very young, of course, and I am so happy and proud to see him as his bright future as he has joined in OnPassive. His vision towards the OnPassive and moreover the trust over the OnPassive is definitely commendable. I am inviting him as the guest, and he would be speaking in English. We are very excited to having this show in the 3 languages, reviving all the barriers of the languages. I am inviting Professor Sahadev Jadhav ji. Professor Sahadev sir, please come over here. I'm inviting you, and initially to start with this, that kindly introduce yourself. What is your current profession and what is your thought process towards the life? And then we will go furthermore. Thank you very much. Please come over here and please speak about this topic. Thank you very much. Over to you. Thank you, madam, for this nice introduction. Before that, am I clearly audible? Good morning and namaste, all the proud founders of OnPassive. I would like to introduce myself. My name is Professor Sahadev Jadhav. I am working with one of the reputed engineering institutes. I have completed my post-graduation in engineering, mechanical engineering, and currently I am pursuing my PhD. And I'm having total 15 years of teaching experience. And I'm having too much hope from the OnPassive because so many educational related products are coming into the market by OnPassive, and I'm eagerly waiting for them. And if you allow me, I can give the vision behind the products or whatever products are coming. Right now, you kindly speak about yourself, that how your upbringing was there and how have you reached till over here in your profession. And in the next part, we are going to come up with the vision about OnPassive. Okay. Thank you, madam, for this nice introduction. And I would like to say namaste and good morning, all the proud founders who are present on this webinar. My name is Professor Sahadev Jadhav. I have completed my engineering in mechanical. Then currently I'm pursuing my PhD and I'm having total of 14 years of teaching experience. And I am from Pune, Maharashtra. Thank you, madam. Thank you very much, Professor Sahadev ji. You have wonderfully explained about yourself. Now I would hand it over to Mr. Pramod Brahmankar. नमस्कार, माझं नाव प्रमोद ब्राह्मणकर. मी या ठिकाणी इन्व्हाइट करतोय मयूर सरबाते. मयूर सरबाते, आपलं इंट्रोडक्शन द्या आणि इंट्रोडक्शन तुम्ही द्याल तुमच्या प्रोफेशनल आणि च्या संदर्भात इंट्रोडक्शन करा, जेणेकरून सर्वांना कळेल की तुमचं प्रोफेशनल काय आणि OnPassive मध्ये अशा प्रकारचे प्रोफेशनल सुद्धा येऊ शकतात हे लोकांना कळेल. ओके, ओव्हर टू सरबाते. Namaste, sir.
Thank you for inviting me in your precious programs, and thank you to Mamta madam to introduce us and promote this. नमस्कार सर्व बांधवांना, आपल्या सगळ्या फाउंडर्सला. वसीम सरांचंही खूप धन्यवाद की ज्यांनी मला याच्यावर बोलवलं, आणि ममता मॅडमनाही की ज्यांनी मला इथे इंट्रोड्यूस केलं. माझं नाव मयूर शिरभाते आहे. माझं प्रोफेशन हे फार्मसी आहे. मी माझी डिग्री फार्मसीमध्ये घेतली आणि मी त्यानंतर MBA इन मार्केटिंग मध्ये केलेलं आहे फ्रॉम पुणे युनिव्हर्सिटी. तर ह्या सर्व याच्यामध्ये एवढं सांगायचं की ऑनपेसिव्हने खूप साऱ्या गोष्टी आपल्याला दिलेल्या आहेत आणि त्या आपण पुढे डिस्कस करू. थँक्यू प्रमोद सर, वसीम सर आणि ममता मॅडम. थँक्यू. मयूर सर, तुम्ही नॉन पॅसिव्ह मध्ये आलात, तर तुमचं जे प्रोफेशनल या ठिकाणी काय तुम्ही वापर करू शकता? हा सर, त्यामध्ये आपण खूप सारे सॉफ्टवेअर्स आहेत की जे क्लाउड बेस आहेत, ते आपण चांगल्या प्रकारे यूज करू शकतो. आणि ॲज सरांनी ते एकाच प्लॅटफॉर्म मध्ये आपल्याला दिले आहेत की जेणेकरून आपण त्याच्यात माझ्या प्रोफेशन मध्ये ओ काउंटिंग, ओ कनेक्ट हे खूप सारे यूज, ओ स्टाफही यूज होऊ शकतो सर. ओके, थँक्यू सर. Over to Sampaji. Pramodji, kindly invite Sampaji. संपत मैडम, आप आइए और आप इंट्रोड्यूस Thank कीजिए you. आपके. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तो नमस्ते. हमारा स्पेशल गेस्ट है आज हिंदी लैंग्वेज का मिस्टर भारत. प्लीज वेलकम. भारत जी आइए, अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आप क्या करते ये थोड़ा हमें बताइए. थैंक यू. वेलकम भारत जी. थैंक यू सपना मैडम. थैंक यू ऑल पैनलिस्ट. सबको मेरा नमस्ते. और मैं खास करके वसीम जी का शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस बड़े मंच पे आज बुलाया है एज ए गेस्ट. और सेकंड थैंक्स मैं सेकंड शुक्रिया करना चाहूँगा ममता मैडम का. उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके कुछ अपनी शेयरिंग रख सकते हैं. मेरा नाम भरत शिंपे है, मैं पुणे इंडिया से हूँ और मैं बाय प्रोफेशनल एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाता हूँ. और मेरे को एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, उसमें मैं काम कर रहा हूँ 15 साल से, और उसमें बहुत अच्छा कर रहा हूँ. और शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए. और टू समर. थैंक यू भारत जी, बहुत बहुत धन्यवाद. ओवर टू ममता जी. Okay, thank you very much, all of you. It was nice listening to you. Everyone has explained about themselves in a very effective way. Now I would like to call again Professor Sahdev ji. And Mr. Sahdev ji, kindly tell me about, actually you are working as a professor in one engineering college, a reputed engineering college. We suppose it means entire whatever in working industry, we suppose it that professorship is the elite profession to be considered whenever you are working or searching for any job profile. So that is the first option in everyone's life to join with as the professorship. Now you are working in an engineering college, a reputed engineering college, as a professor, having the experience of 15 years, as you have told us. What was the thing that, in spite of such a nice profession and elite profession, why you were searching something else which will give you some parallel income and furthermore the financial freedom? So kindly put up your views about this. I'm very anxious to listen to you, because this is my inner question. Whenever I have seen you and I've heard about you, it was my question that why he has come in. Of course, everyone has the right to choose a parallel income and can think for the parallel income. But when I had passed my post-graduation and initially I was working like a professorship, it was the ultimate for me. If I would be the professor somewhere else, I would have never chosen any other platform. It is thankfully that God has not given me that opportunity at that time, and I have got this platform. So I'm very thankful to God about this. Over to you, and please kindly introduce
this factor that why you were searching something and you got it. I wanted to focus on the topic where the system is lacking and where we, in spite of having an elite profession, we need to find some another platform or some another parallel income. Over to you. Very nice question, and it is really close to my heart because I always wonder about it, why I have chosen this profession. So just for your information, I was the college topper, and I got the good opportunity in the industry, and I was working there for 2 years as in the R&D field. But later on, I was very much acquainted towards the society, is the way people or how to behave, how to deal with the people, how to take care about them, social issues about them. So I was very much acquainted about that, and in the industry I was not getting that chance. So on one fine day I decided to quit my job, and I switched to the educational field. And obviously, being a studious person, I started my further studies like PG, then post graduation, PhD and all. But at some point of time, I came to know that yes, PhD or education, all these things are okay, it's fine. But nowadays, in recent world, the success of the person is measured in terms of money only. And I was in search of that kind of opportunity wherein I will get the passive kind of income. And on one fine day, one of my friend, he is working in the same profession in the teaching only. He introduced me about the on-passive, and by his introduction, I just, without wasting a time, I told him that I'm in this opportunity. And then I started thinking about the on-passive. I started getting the knowledge about the on-passive. I listened to Ash sir. Then on those days, there was a question answer session conducted by Dylan sir. So I was attending that, and some point came that I decided, and I was 100%, rather 200% sure that nothing or no any opportunity will be there greater than this on passive. And I started, bloom myself in this on passive, and I'm here now. Wow, what a great explanation. Actually, high regards to you, because in spite of having such a bright academic record, you were having this type of vision to have something else in your life, and you were searching. And I am right now having mesmerized about this thing, that when you have listened to it about the project, you told that in a minute you have joined. So my question basically is it really happen with you, or some another negative thoughts had come in your mind that what kind of business would be it would be? Because in a minute you can't understand on passive project, to be very frank. But if you have listened to the project, listen to the webinars, and in a minute you have taken your decision, then still, was there any other fear about it, that it might be some another platform which is totally unorganized and which has a lot of manipulations and which is not that much respectable profession? So it happened with me. That is the reason I'm asking you, did you think like this whenever somebody had approached you? Please, over to you. Actually, madam, I was satisfied by my decision, but when I entered in this system, educational field, then I came to know that the system is not at all corrected or correct one. Because, first thing is that even though it is a noble profession, but the organizations or the people who are running these institutes, they don't look towards this as a noble profession. Yes. And that's the reason when there is one say that unpaid or underpaid teachers can't build the future. And that's the reason, because here, as I said, this profession is not taken as a noble profession by the owners of the institutes. So
And that is one side, but on the other side, whatever we are teaching to the students, is it really required to them? That was the another issue I was getting, because let's say, for example, I'm teaching one of the subject, is it really helpful to them in future in their career? So at some point of time, I was wondering that there should be some kind of platform on which those things which are needed to the students should be taught, not those things which are unnecessarily overburdening them. So that was the thought process, and I was in search of that opportunity. And when I heard about the academy, I was 100% sure that this is the platform wherein I can showcase my talent. Whatever knowledge I have, I can showcase it in the form of videos or whatever teaching skill I have, and then I can deliver it to the required targeted audience. That was my thought process behind it. Wonderful. You have raised one issue that about the payments and all, but I'm thinking in another way that actually whatever we say about the organizations or the institutions which are running for to uplift education sector, are they really doing it? Number one, it's a mere business for them. It's we consider that it's a noble platform or a noble profession along with this noble and renowned institutions, but over the period we come to know that they have nothing to do with education and the quality of the education. They are just running their business, and that is the reason that we also think then that if this thought process is having such the manipulations and some rusty things, so we need to move somewhere else where our own education income. So it was wonderful to talk to you. Next subject, I would like to listen to you that when you have entered in OnPassive and you have joined OnPassive, by the way, you had come across the webinars and you came to know so many things about it, the introduction of OnPassive, the entire aura of OnPassive, how many countries the OnPassive is running and how many countries the founders are raising their hands. Along with this, what was your click that it was the final moment that without OnPassive, nothing is there? It had happened to me because I had seen so many things, but when I had understood thoroughly about OnPassive, it was a turning point of my life. And that moment was that I have won the battle. I do not need any launches or something else, but whenever I have understood that this is going to happen and I have entered in OnPassive, I have already won the battle the moment I have entered in OnPassive, the moment I have signed up. So kindly tell me about your mental status when you have understood OnPassive, and how do you think about the vision of the OnPassive? Now we have understood your vision towards finding some parallel income. Now we want that once after having such a good knowledge in these many years, what have you understood the vision of the OnPassive? Please, over to you. Yeah. Basically, that confidence was built up stage-wise. First thing was by getting the knowledge, as I said, by webinars and later on, whenever Ash was there on the webinars and when he used to speak, that confidence or whatever conviction in his speech, that made me to put the belief on the OnPassive. Because at the time I joined in 2020, October 2020. At that time, nothing was there. There was no any Hyderabad office. I think that construction was going on. So I started realizing the thing that yes, whatever vision told by the Ash are going to fulfill, and stepwise, all these things. And I kept myself updated with these webinars so that I could get the introduction. One more thing I feel very, very impressive about the Ash is that no any CEO on this planet shows his face to the founders, proud founders, twice or thrice in a week. This is very, very impressive thing for me to make him, because the founder himself, whether it's a good thing or bad thing, he always shares the thing with you as a partner.
So that is an impressive thing for me, and he treats us as a partner or the founder. So that clicked me. One more thing was that Burj Khalifa, because that was the trigger point. I swear that I was not sleeping at that night after webinar, because the Burj Khalifa is such a monument wherein people struggles to reach over there. Even they reach there, they can't enter inside, but they have to take the click from outside only. And in such a big monument, we are having our office. It's a very really a proud moment or proud thing for us. And later on, Hyderabad office, as I said, then Singapore office, Bangladesh office, day by day, then our own data centers. All these things made me to keep belief on passive. And once, as I said, after telling, after looking after all these things, I at certain point reached wherein I decided, no, nothing will be there, either my job or on passive. Nothing will be there after this. Wow, such a wonderful explanation. Thank you, Professor Sahadevji, for your nice explanation about the vision. And now I am going to hand it over to Mr. Pramod Brahmankarji in Marathi language. Thank you very much. Over to Pramodji. Mahir Sarvati, तुम्ही ऑन पॅसिव्हला तुम्हाला कसं इंट्रोडक्शन केलं गेलं आणि तुम्ही ऑन पॅसिव्ह मध्ये आल्यानंतर तुमच्यात तो काय बदल झाला आणि तुमच्या प्रोफेशन मध्ये तुम्हाला त्याचा कसा उपयुक्त ठरणार आहे याचं थोडक्यात तुम्ही आम्हाला सांगू शकता. थँक्यू सर, मला क्वेश्चन विचारल्याबद्दल. या प्रश्नामध्ये एक्झॅक्टली तुम्ही म्हणतात की आपण ऑन पॅसिव्ह मुळे मला काही चेंजेस झाले. जेव्हा मी 30 नोव्हेंबर 2020 ला जॉईन झालो ऑन पॅसिव्ह मध्ये, त्या ऑन पॅसिव्ह मध्ये नंतर एक्झॅक्टली जे चेंजेस होत चालले, पहिले गो फाउंडर होतं, ते गो फाउंडर नंतर ओ फाउंडर्स मध्ये आपण शिफ्ट झालो. त्याच्यामध्ये जितके बदल त्यांनी डिसेंबर महिन्यात चेंजेस केले, ते चेंजेस मी माझ्या प्रोफेशन मध्ये मला एक्झॅक्टली कळाले की आपल्याला कोणते खूप सारे टूल्स आहेत, त्या टूल्स मध्ये आपण ते टूल्स आपले बिझनेस मध्ये यूज करू शकतो. माझं प्रोफेशन एज मेडिसिन रिलेटेड आहे, कारण का फार्मास्युटिकल्स मध्ये आता जॉईंट रिप्लेसमेंट काही होत असेल तर तिथे त्या टेक्नॉलॉजी यूज होत आहे. तर त्या टेक्नॉलॉजीमुळे मला पण एक त्याच्याबद्दल एक उत्सुकता होती की ती टेक्नॉलॉजी एक्झॅक्टली काय. जेव्हा मी समजलं त्यानंतर मला आपण मोस्टली फेसबुक आपण एखाद्या वगैरे सर्च केलं तर आपल्याला ते सगळ्याच ठिकाणी भेटतं की बाबा हे टेक्नॉलॉजी आहे. आणि ती टेक्नॉलॉजी जर आपल्याला प्राऊड फाउंडर होऊन सगळ्या गोष्टी भेटत आहेत आणि त्याचा प्रोफेशन मध्ये मला यूज होणार आहे, तर प्रत्येक जसं ओ काउंटिंग आहे, काही टूल्स आहेत आपले, ओ स्टाफ आहे, हे ओ मेल आहे, ह्या टूल्सला यूज करून मी माझ्या प्रोफेशन मध्ये त्यामध्ये प्रोग्रेशन चांगलंच होईल. आणि ते सरांनी आपल्याला प्रोव्हाइड केलेले आहेत आणि त्याची आपण सगळ्यांनी चांगल्या प्रकारे उपयोगात आणू हेच मला वाटतं. एक्झॅक्टली सर. ओव्हर टू प्रमोद सर. थँक्यू. ओव्हर टू संपत. थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू वेरी मच. तो हमारा गेस्ट मिस्टर भारत जी आइए, प्लीज बताइए आप ऑन पॉसिबल में कैसे आए. धन्यवाद मैडम, आपने मुझे बुलाया मंच पे. एक्चुअली आपका जो सवाल है कि मैं ऑन पॉसिबल में कैसे आया, इसका जवाब ये है कि ये गॉड गिफ्टेड है मेरे लिए और ये मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट है. इसके पहले ना ही मैं कुछ इंटरनेट के बारे में इतना कुछ जानता था, ना ही मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज था. हम सिर्फ यही जानते थे कि हमें फेसबुक चलाना आता था, व्हाट्सएप चलाना आता था या थोड़ा जानकारी थी, पर हमें कहाँ पता था कि इंटरनेट पे ये सब चीजें होती है. जैसे हम वर्चुअली आज हमने आप कोलकाता से हो, मैं या पुणे से हो, वसीम सर आज पाकिस्तान से है. ये जो डिस्टेंस बैरियर जो टूटा हुआ है, ये इंटरनेट की वजह से टूटा हुआ है. मतलब इंटरनेट का पावर कितना है ये इसके पहले हम नहीं जानते थे. जब अनपैसिव के पहले हम लोग नहीं जानते थे कि इंटरनेट पे कितना पावर है. और अभी हम जैसे ही मैं ऑन पैसिव में आऊँ मुझे पता चला कि इंटरनेट पे कितना पावर है, इंटरनेट में कितना वेल्थ है, ये हमें पता चल रहा है. क्योंकि ऑन पैसिव हमें जो सिखा रहा है 2 साल से, जो मैं ये तो ऑन पैसिव में के 2 साल हो गए. 20 अक्टूबर 2020 में ऑन पैसिव में एंटर हुआ था और मेरे लिए गॉड गिफ्ट है, मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है.
और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ से। मैं एजुकेट हो रहा हूँ, खुद को मोटिवेट कर रहा हूँ, खुद बहुत पॉजिटिव हूँ सब चीज़ों के लिए, ऑन पैसिव के लिए नहीं, अदर वर्क में भी। जब मैं मेरी वर्किंग में काम करता हूँ तो मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ सब चीज़ें। और एज सर ने जो पूरा उनका विजन में देखता हूँ, जब वेबिनार पे वो बात करते हैं, वो कैसे बात करते हैं, वो ह्यूमैनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, पूरी दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं। अभी तक हमने ऐसा पर्सन देखा ही नहीं कि तो पूरी दुनिया के बारे में सोचे। आप मुझे एक भी ऐसा पर्सन बता दीजिए जो रिचेस्ट बिजनेसमैन है, जो आज पूरी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं। कोई भी नहीं सोच रहा है जो ऐसे सोच रहे हैं। उन्होंने पूरी ह्यूमैनिटी के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में सोच के रखा है, और ये इतने बड़े प्लान के साथ चल रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोच के चल रहे हैं, वो सामने दिखाई भी दे रहा है हम लोग। जैसे हम वेबिनार में देख रहे हैं, ऐसा हम सामने बैठते हैं तो हमें पता भी चलता है कि हाँ सही में इनके पास कुछ तो विजन है, और सही में कुछ तो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ तो करेंगे, और पूरे धरती के लिए कुछ तो करने वाले हैं। और ये ऐसे हमको जो मिले एक गॉड गिफ्टेड भी है हमारे लिए। मतलब भगवान ने शायद उनको भेजा रहेगा कि आप जाओ, जो दुनिया में सब कुछ जो करप्शन चल रहा है वो सबको मिटाओ आप। तो मुझे लगता है शायद वो इसीलिए ही आए हैं धरती पे। और उनको देखने के बाद तो इतना पॉजिटिव फील होता है कि बहुत, मतलब मेरे लाइफ में तो ऑन पैसिव आने के बाद आपने जैसे सवाल पूछा कि बहुत सारे चेंजेस हुए। मैं खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे लाइफ में ऑन पैसिव आया है, और इसके आगे मैं चाहता हूँ कि मैं इसके लिए बहुत कुछ काम करूँ, और ऑन पैसिव के लिए भी काम करूँ, और जो ह्यूमैनिटी के लिए जैसा ऐसा का विजन है, उनके विजन को लेके उनके साथ में चल के मैं काम करूँ, ऐसा मुझे लगता है। और मैं बहुत ही शुक्रिया करता हूँ सब लोगों का, और ऐसा का शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सब लोगों को की है। थैंक यू ऑल टू सपोर्ट। थैंक यू भरत जी, बहुत अच्छी तरह बताए। तो आपको क्या लगता है ऑन पैसिव क्या करने के लिए आए हैं दुनिया में? और ऑन पैसिव मैडम ये मानवता के लिए आया है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ह्यूमैनिटी जो सर बोलते हैं कि मैं पूरे अर्थ या पूरे ह्यूमैनिटी सबको, मैं सबके लाइन, तो जैसे उनका लाइन है कि मैं आपके लाइफ चेंज करने के लिए आया। वो सिर्फ जब जैसे ऐसे रहते तो पहले यही बोलते, मैं आपके लाइफ चेंज करने के लिए आया हूँ। उसमें सब कुछ आ गया है मतलब, और उनके पास वो है भी। जैसे कि हमारे प्रोडक्ट है, डिस्ट्रिब्यूटर प्रोडक्ट है, जो आप आज प्रोडक्ट देख रहे हैं, उनसे कई गुना बेहतर हमारे पास प्रोडक्ट आने वाले हैं। वो तो कुछ दिनों में दिखने वाले हैं हम लोगों को। तो ये सब नया टेक्नोलॉजी, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेशन है, ML है, ये जो सारी चीजें हैं, ये कहाँ, मुझे लगता है जो भी यहाँ पे फाउंडर बने हुए हैं, वहाँ पे 90% फाउंडर लोगों को इंटरनेट के बारे में पता भी नहीं रहेगा। जो ऑन पैसिव होने के बाद सबको मालूम पड़ा है, जो फाउंडर होने के बाद मालूम पड़ा है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं खुद के ऊपर बात कर रहा हूँ, मुझे कहाँ मालूम था। तो मुझे लगता है ऑन पैसिव अगले कुछ सालों में ही पूरी दुनिया पर राज करने वाली है, क्योंकि ऑन पैसिव में उतनी पावर है, और वो सब टेक्नोलॉजी है जो नया डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, मुझे लगता है ऑन पैसिव पूरी दुनिया पर राज करेगी कुछ सालों में ही। जी बिल्कुल, थैंक यू भरत जी। मुझे लगता है ऑन पैसिव आपके एकदम दिल में बैठ गए, आप ऑन पैसिव को बहुत अच्छी तरह समझ रहे। तो थैंक यू भरत जी, जुड़े रहिए। ओवर टू ममता जी। Thanks a lot, Sampaji. You have handed over to me, and I would be giving the last question to Mr. Professor Sahdev ji. Mr. Sahdev ji, whatever you had explained, it was a wonderful explanation. Your vision and the reason to join on passive is very clear. Just we wanted to know about it, that whatever you have learned in these many years about the on passive, and you have heard the webinars, what are the key points which you remember always and you wanted to share it to all of us? Please, over to you. Basically, from my point of view, academy, as I said, it's very close to my heart, because that's going to contribute a lot in my profession, as well as O-Connect, because therein we can have interaction with the students. And very, very close to my heart is the O-Plus. As I said, I was associated with the social responsibilities or activities. Just I want to give the example that whenever we travel and stop on a signal, to the right side there is a BMW car, and to the left side there is a beggar begging for the money to fulfill his stomach. So my point of view,
OPLES is very, very crucial and important and going to play very important role in the society improvement. Thank you so much, ma'am. Wow, wonderful. That is a reason on passive working for humanity and equality. It was a wonderful reason that every one of us has touched over this point some on another day. Thank you very much, and over to Pramodji for Marathi language. आभारी मॅडम. मयूर सर, मला एक प्रश्न विचारायचा आहे मला की तुमच्या प्रोफेशन मध्ये ओ वॅलेटचा वापर तुम्ही कसा करणार, किंवा तो वॅलेटचा तुमच्या प्रोफेशन मध्ये किती लागू होणार? ओके सर, थँक्यू त्या क्वेश्चन बद्दल. कारण वॉलेट हे ऍक्च्युली आपण मोस्टली आता फोन पे, जीपे यूज करत आहे मोस्टली. आता आम्ही आमच्या प्रोफेशन मध्ये, आमचं मेडिकल प्रोफेशन असल्यामुळे मेडिकल्सवर मोस्टली पेमेंट्स आपण ऍक्सेप्ट करतो लोकांकडून. तर त्या प्रत्येक ऍक्सेप्टन्स मध्ये आपण वॉलेट यूज करू शकतो. प्रत्येक वॉलेट आपण इतकं सेफ आहे की ज्याच्यामुळे आपण जे जीपे आहे किंवा याचे जे क्लाउडवर जो डाटा जातो तो डाटा ऍक्च्युअली कुठेतरी लीक होतो एक प्रकारे. पण वॉलेट मध्ये तशा गोष्टी होणार नाही. आणि वॉलेट आपण प्रत्येक ठिकाणी यूज करू शकतो. म्हणजे इव्हन रिटेल स्टोर्स मध्ये किंवा हॉस्पिटल्स मध्ये किंवा एखाद्या आपण कंपनीमध्ये जातो तिथे त्यांचे पेमेंट्स करण्यासाठी किंवा मोस्ट ऑफ द ऑनलाईन पेमेंटसाठी आपण यूज करू शकतो. अशा प्रकारे आपण मोस्टली वॉलेट आपण आपल्या प्रोफेशन मध्ये आमच्या यूज करू शकेल. थँक्यू सर. ओव्हर टू प्रमोद सर. हो, वॅलेट तुमच्यासाठी काय, तुमच्या पर्सनल? सर मी तर माझ्या प्रोफेशन मध्ये खूप काही यूज करेल त्यामध्ये. तुमच्या पर्सनल साठी? हा, येस सर. तुमच्या पर्सनल, तुमच्या व्यक्तिगत आम्ही यूज वॉलेटला मी जास्त ह्यासाठी दिल की त्या थ्रू खूप सारे कनेक्शन्स, खूप सारे कस्टमर्स आपल्याला भेटतील. प्रत्येक ठिकाणी आपण त्याला प्रमोट करू शकतो. आणि आज असं झालं की इंडिया, ऑल ओव्हर द वर्ल्ड मध्ये युपीआय थ्रू खूप सारे पेमेंट्स होत आहेत. युपीआय इज वन ऑफ, इतकं चांगलं फंक्शनिंग करत आहे की मागच्या काही महिन्यामध्ये हे बिलियन्स ट्रान्झॅक्शन्स होत आहेत. ते ट्रान्झॅक्शन आपण जर का वॉलेटला आपण वळवण्यात आले तर त्या वळवण्यामुळे खूप काही ट्रॅफिक आपल्याला जनरेट होईल. खूप ट्रॅफिक आपल्याला ओन पॅसिव्हला भेटेल आणि त्या ट्रॅफिकचा सगळ्यांना फायदा होईल. एक्झॅक्टली सर. ओव्हर टू प्रमोद सर. ओव्हर टू संपतजी मॅडम. थैंक यू प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तो मिस्टर भारत, प्लीज आइए. आप एक बात बताइए, आप आफ्टर लॉन्चिंग, ऑन पैसिव लॉन्च हो जाने के बाद जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तभी आपका क्या मिशन है? आप क्या सोचते हैं? आप क्या करने वाले? तो सोचे क्या? धन्यवाद मैडम आपने सवाल पूछने के लिए. एक्चुअली आफ्टर लॉन्चिंग तो बेसिकली पहले जो मेरे नीड्स है या जो मेरी लाइबिलिटीज है सब मैं क्लियर करके जब मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है तो मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि सेल्फ नीड भी बहुत जरूरी है. मेरे भी कुछ एम्बिशंस है, मेरे कुछ ड्रीम्स है, वो मैं कंप्लीट करने के बाद जब मुझे लगेगा ठीक है अभी ये हो गया, अभी क्या करना. अभी हमें फिर जो हमारे आजू में या बाजू में जो है, जो हमें दिखता है कि बाबा यहाँ पे किसी को जरूरत है, उसकी मदद की जरूरत है, तो हम जरूर उसके लिए मदद करेंगे. किसी को एजुकेशन के लिए मदद करेंगे या किसी को हम लोग फूड के लिए मदद करेंगे. मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं मैंने प्लान आउट करके रखी है. पहले तो मैं मेरा खुद का देखूंगा, बाद में मैं जो मेरा परिवार है, बाद में जो मेरे रिलेटिव्स है, क्योंकि शुरुआत हमें खुद से ही करनी होगी. हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे पास कुछ नहीं हम देने जा रहे हैं, ये भी तो गलत है ना. तो मैं वैसा नहीं करूंगा. मैं जो है वो क्लियरली बात कर रहा हूँ कि जब मैं पहले खुद का देखूंगा, फिर मैं मेरे रिलेटिव्स है, जो कि मेरे आजू में तो बहुत सारी चीजें हैं हम कर सकते हैं. कि दुनिया में देखा जाए तो बहुत गरीबी है, बहुत लोगों को जरूरत है, हेल्प की जरूरत है. तो जब हमें सब ऑन पैसिव देने वाला है, और ऐसा का मिशन ही यही है कि उनको खुद के लिए कुछ करना ही नहीं है. वो तो पहले बोलते हैं अगर मुझे खुद के लिए करना हो तो कोई फाउंडर क्यों बना था. मैं तो बिलियनर ट्रिलियनर बन के मैं भी टॉप 10 में आ गया रहता, और मैं भी फिर तो रिचेस्ट पर्सन में आके फिर मैं खुद के लिए. उन्होंने शुरुआत इसलिए की तो हम फाउंडर लोगों को भी वही करना पड़ेगा जो उनका ड्रीम है, उनका जो विजन है, उसको लेके हम लोगों को चलना पड़ेगा. ठीक है, वो हमें सब कुछ दे रहे हैं, सब परोसा हुआ है हमारे साथ.
सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, उसमें से जो आएगा उसमें बांटना है बस। तो मैं चाहता हूँ कि जब ऑन पैसे लॉन्च होगा, मैं तो भगवान से यही हमेशा दुआ करता हूँ कि सर की उम्र लंबी हो और ऑन पैसे भी बहुत सक्सेस हो, हम लोग टॉप पे जाए, सब फाउंडर की लाइफ बहुत अच्छी हो, और फिर हम तो दुनिया बदलने के लिए आए ही, ऐसा का विजन ही वही। तो मैं चाहता हूँ कि बस शुरुआत होनी चाहिए, शुरुआत होने के बाद हम लोग सब कुछ करेंगे। थैंक यू फॉर टू सब। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एकदम, इसलिए तो बोलती हूँ, गेट रेडी फॉर योर परफेक्ट लाइफ, कमिंग सून, वेरी कम सून। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद जी, भारत जी, थैंक यू। ओवर टू वसीम सर। थैंक यू संपा जी। और आज का शो बहुत एक्साइटिंग था। असल में हमें बहुत से फाउंडर्स को सुनने का मौका मिलता है, उनके बारे में जानने का मौका मिलता है, और ऑलमोस्ट सभी के जो एक चीज तो ऑन पैसिव ने एक चीज तो पैदा की है, पॉजिटिविटी पैदा की है, और दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दिया लोगों ने यहाँ आकर। अगर किसी ने एज ए बिजनेस भी ये ऑन पैसिव स्टार्ट किया, उसकी सोच बदल चुकी है। और ऑलमोस्ट जिन्होंने भी ज्वाइन किया, आई थिंक उनको किसी को भी नहीं पता था इस बारे में डिटेल से, लेकिन जस्ट उन्होंने एज ए बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर किया। लेकिन हम लकी हैं कि हम ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर चुके हैं। और बाकी भारत जी ने बिल्कुल सही कहा है कि हमें जो मदद का सिलसिला हमें पहले अपने घर से स्टार्ट करना है, अपने बहन भाई या रिश्तेदार या पड़ोसी नेबर, और उसके बाद फिर दूसरों को। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का। प्रोफेसर मैं से स्टार्ट करना चाहता हूँ, रिव्यू लेना चाहूंगा। प्रोफेसर सहदेव जी से पूछना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने कहीं जाना भी है। मैं चाहता हूँ आप इन शॉर्ट एक बताइए कि आपको कैसा लगा ये शो, और आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए, और उसके बाद आप लीव करना चाहे लीव कर सकते हैं। जी प्रोफेसर साहब। थैंक यू वसीम जी। पहले तो मैं बहुत आपका धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपने मुझे इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर दिया। यहाँ पे बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, सभी के फाउंडर्स, प्राउड फाउंडर्स यहाँ पे सब एक प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे, अपनी फीलिंग्स, अपने विजन्स, ड्रीम्स शेयर कर रहे। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो ये जो प्लेटफॉर्म मुझे दिया ना, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। एंड वेरी सुन, देखो ऑन पैशनिक इतना क्लोज लाके रखा है सब लोगों को, कि कितने 200+ कंट्रीज के लोग साथ में बैठ के अपना विजन, अपना ड्रीम्स शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, एंड एज वेल एज ममता मैडम, थैंक यू। थैंक यू प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने, मुझे पता है आपको कोई जरूरी काम से जाना है, आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपके आने का शुक्रिया। मैं चाहता हूँ आप मेरे हमारे नेक्स्ट शोज में भी आएं और हमारे शो का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच। जरूर सर। एक्चुअली हमें चाहिए आप जैसे फाउंडर, हम लोग सुनना चाहते हैं आप जैसे फाउंडर्स को यहाँ पर, और पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो नेक्स्ट मैं जाता हूँ ममता जी। ममता जी, आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगा होगा तो क्योंकि फर्स्ट टाइम बहुत 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 धन्यवाद वसीम भाई। पहले तो हमारी चर्चा बहुत महीनों से शुरू है कि इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे, लेकिन कुछ व्यस्त थे, बीच में दिवाली थी, एग्जाम्स थे, तो कुछ बन नहीं पाया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी तो करना ही है। और मैं जानती थी हमारे इन जो भी आज मैंने जिनको बुलाया है, इनके बारे में मैं जानती थी, उनका डिलीवरी स्किल मुझे पता था, उनका ऑन पैसिव के बारे में विजन पता था। तो इतना विश्वास तो था ही कि ये शो बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैंने दो बातें महसूस की, वो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे लैंग्वेजेस एक ही मंच पे है। हम लोग बातें करते हैं बिजनेस की, और मोर ओवर देन कि हम एक ग्लोबल बिजनेस की बात करते हैं। लेकिन जब एक बिजनेस ग्लोबल तौर पे बहुत अच्छी पायदान पे होता है, बहुत ऊंचाई पे होता है, तब जो कम्युनिकेशन होता है उसका क्या, इसके बारे में किसी ने विचार नहीं किया। क्योंकि अगर ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है तो उतने सारे लोग हैं, उतनी कंट्रीज है, उतनी सारी भाषाएं हैं, उतनी सारी कल्चर है। तो ये एक गेटवे आपने दे दिया है, क्योंकि जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे हमको किसी के बारे में पता नहीं चलेगा। और जब पता चलेगा तो धीरे धीरे हमको ऑन पैसिव के साथ साथ अपनी दुनिया में जितने भी कल्चर्स है,
जितने भी ट्रेडिशन है उनको ढूंढने का और उनको एक आयाम देने का हमें एक मौका मिलेगा। और वो बहुत अच्छी बात आपने ढूंढ निकाली। मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ आपको कि आज जी ने एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन आपने उस प्लेटफॉर्म को एक कम्युनिकेशन लेवल दे दी है, एक कम्युनिकेशन गेटवे दिया है। जैसे हम हमेशा गेटवे की बात करते कि वॉलेट की बात करते तो गेटवे की बात करते, हमने आईडी एक्टिव करते समय गेटवे का महत्व जो है, जो इम्पोर्टेंस है, उसको समझा है। तो वही महत्व ये इस प्लेटफॉर्म का भी रहेगा आगे जाके, क्योंकि हम सिर्फ बहुत सारे देशों से बात नहीं कर रहे, हम बहुत सारी देशों की कल्चर और लैंग्वेजेस और उनके ट्रेडिशन के साथ आगे चल के बात करेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म का जो एक मैं कहूंगी कि जो दायरा है वो सिर्फ लैंग्वेजेस तक सीमित नहीं है, ये एक मर्जिंग के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म रहेगा और कल्चर और ट्रेडिशन को जानने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा। दूसरी बात है कि आज के प्लेटफॉर्म में मैंने ये भी एक नोटिस किया कि जो हमारे सारे मान्यवर गेस्ट थे जो उनका शेयरिंग था, एक बात है कि आयश जी हमेशा कहते हैं कि ऑन पैसिव इज फॉर एवरीवन। तो जैसे हमने प्रोफेसर सहदेव सर को देखा कि वो टॉपर थे लेकिन फिर भी ऑन पैसिव सुना और चुना। ऐसे भी बहुत सारे फाउंडर्स हैं कि जिनके पास कोई भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है या आउटस्टैंडिंग एकेडमिक स्किल्स नहीं है, फिर भी वो जीतने ही वाले हैं। तो दिस प्लेटफॉर्म इज ट्रूली फॉर अ विनिंग गेम फॉर एवरीवन, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और रिव्यू तो बहुत अच्छा है, आज का A+ मैं कहूंगी कि, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको इसके बाद के लिए भी ऑल द बेस्ट। ओवर टू यू। थैंक यू ममता जी। और मैं चाहूंगा आप हमारे नेक्स्ट शोज में भी एज ए गेस्ट, एज ए होस्ट या एज ए बैक ऑडियंस हमारा यहाँ पे शो को वॉच करें, यहाँ का हिस्सा बने और रिव्यू दें बाद में, जिस तरह हम अभी लेते हैं। अभी हमारे साथ कुछ और गेस्ट भी हैं जो हमारे साथ, उनसे भी हम रिव्यू लेंगे जिन्होंने हमारा शो पूरा वॉच किया है। तो लेकिन हम पहले जो हमारे यहाँ पे होस्ट हैं और गेस्ट हैं उनसे हम रिव्यू लेना चाहते हैं। तो प्रमोद जी, आपको कैसा लगा? आपके लिए थोड़ा फायर सा फायर फायर नया था। फायर 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 फायर। हाँ जी, वैसे थैंक यू। हाँ जी, ममता जी, ममता दीदी ने जो मुझे प्लेटफॉर्म दिया है और आपके साथ जुड़ने का जो मौका दिया है, तो मैं इंडिया पाकिस्तान सुनते हैं, लेकिन आज हमें पता चला कि इंडिया पाकिस्तान में क्या फर्क है। कुछ नहीं, क्योंकि हम एक प्लेटफॉर्म के अंदर आ चुके हैं ना। ऑन पैसे एक टीम है, इस ऑन पैसे की टीम में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान कुछ मतलब ही नहीं रह गया। बिल्कुल दूसरी बात की आपके साथ बात करने से ये पता चला कि मैं दूसरे कंट्री के लोगों के साथ जब बात करता हूँ और मैं हिंदुस्तान में लोगों से बात करता हूँ तो कुछ नहीं बदल रहे, एक ही दिल की बात निकलती है। और ऑन पैसे में यही सीखा है। और ममता दीदी ने जो हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है, और हमें, हाँ, जिस वक्त हम ममता दीदी से पहली बात मुलाकात हुई थी तो हमेशा मैडम हमें पॉजिटिव कुछ चीज़ें बताती रही, और उनके साथ जाने के बाद है ना, तो हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि नहीं, हम लोग ऐसे लोगों के साथ आ रहे जो हमें कभी मिले नहीं, जो हमारे जैसे हमें आगे लेके जा रहे। और ये जो प्लेटफॉर्म है आपने बहुत अच्छा मेंटेन किया है, और इसे और भी बड़ा अच्छा हो सकता है, और भी ज़्यादा लोग देखे आएंगे, कुछ इंडिया अमेरिकन लोग आएंगे, उनके साथ भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो भी और अच्छा रहेगा। जी जी जी, प्रमोद जी, इंडिया थैंक यू वेरी पाकिस्तान मच। और अदर और कंट्री। आपको मैं बताना चाहूंगा, ये वो अमेरिकन लोग आ चुके हैं हमारे सब प्लेटफॉर्म में। इससे पहले हम ये 11th शो होगा जो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे यहाँ इंग्लिश, फ्रेंच और सिनेगाल लैंग्वेज, साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज, जमैका लैंग्वेज, ये हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो ये है कि यहाँ पर ये, लेकिन हमने ये कोई लैंग्वेज में कोई बाउंड्री नहीं रखी कि हमने लोकल लैंग्वेज करनी है। लैंग्वेज इज लैंग्वेज, चाहे इंटरनेशनल लैंग्वेज हो चाहे लोकल लैंग्वेज, लैंग्वेज इज लैंग्वेज। यहाँ पर कोई हमने बाउंड्री नहीं रखी। अगर इंटरनेशनल लोग आएंगे तो वो भी हम इंशाल्लाह शो करने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे शो होने वाले रिकॉर्ड, उसमें भी हम इंटरनेशनल गेस्ट होंगे, और आई होप सो कि स्पेनिश लैंग्वेज भी आई थिंक आने वाली है, और बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस है। तो जर्मन लैंग्वेज है हमारे पास, और हम अप्रोच कर रहे हैं जर्मन के लैंग्वेज के लिए, स्पेनिश के लिए, ताकि यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ पर पेश की जाएं। और थैंक यू वेरी मच आपके यहाँ आने का। और मैं चाहता हूँ आप हमारे नेक्स्ट हर शो का हिस्सा बने। यहाँ पर आपका यहाँ पे एक हिस्सा रहे, चाहे आप बैक ऑडियंस के तौर पर हो, चाहे गेस्ट के तौर पर हो, चाहे
चाहे आप होस्ट। मैं हमेशा रहूंगा, थैंक हमेशा यू। रहूंगा। संपा जी किसी तारुफ की मोहताज नहीं, और थैंक यू वेरी मच। ये हर शो में हमारा ये उन्होंने एज ए होस्ट या गेस्ट उन्होंने पार्ट अदा किया है, और ये शो का फॉर्मेट भी यही है कि हम होस्ट और गेस्ट उसी को चूज करते हैं, और संपा जी हमेशा हमारे काम आई, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया जी। संपा जी आज के शो के बारे में क्या कहेंगी? आज का शो तो बहुत ही बढ़िया है, और हमारे दीदी आए हैं, हमारा ममता दीदी आए हैं, तो और भी बहुत चार चांद लग गए। वैसे तो हमारा शो वैसे ही सुपर हिट है, और ये जो स्पेशल गेस्ट आए हैं तो उससे तो और भी ज्यादा अच्छा बन गए, क्योंकि मैं ममता दी का बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो देखिए ऐसे तो ये जैसे उन्होंने बोला जो ये इंडिया पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली मैं ऐसा कुछ मानती भी नहीं हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता जो ये क्या बात है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसी से बात करती हूँ। तो ऐसा नहीं जी ये वसीम का प्लेटफॉर्म है क्या, दिल्लो का प्लेटफॉर्म है क्या, किसका प्लेटफॉर्म है, मुझे ऐसा उसमें कुछ नहीं है। लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है मैं वहीं पे जाती हूँ। मैं ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हूँ जो मैं उधर एंटर नहीं की है। तो जहाँ नॉलेज दुनिया में नॉलेज बांट रहा है, ऑन पोसिट का नॉलेज जहां से मिलता है समेट लो, ये मेरा मानना है। और दुनिया जो है हम सब एक करना चाहता है दुनिया को, ऑन पोसिट हमें, तो हम क्यों ना करें। हम ऑन पोसिट में आ गए, ऑन पोसिट इतना कुछ समझ रहे हैं। ऑन पोसिट में मैं तो कहती हूँ ऑन पोसिट जैसे मेरे खून में समा गया। ऑन पोसिट सारा दिन रात ऑन पोसिट करती रहती हूँ मीटिंग करती रहती हूँ, तो वन परसेंट तो खुद में ही समा गया, ऐसा हो गया। तो हमें इसमें ना कोई बैरियर है लैंग्वेज का, ना कोई देश का, इसमें हम सब ऑन पेसिबियन हैं। तो इसलिए मैं भी पिछले बार मैं अपने बेटे को लेके आई गेस्ट के रूप में, क्योंकि मुझे लैंग्वेज का पूरा करना है, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज उसको लेके आए। तो ठीक है, ऐसा हम कोशिश करते हैं जो नहीं इधर जाके हम अपना टास्क पूरा करें। तो मैं अपना समझती हूँ सबको। और हमारा वसीम जी तो वैसे ही बहुत ही अच्छे हैं, और उनके वेबिनार में एक बार मुझे लगता है जो कोई भी एक बार आए वो दोबारा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। वो दोबारा आएगा, बिल्कुल आना चाहेगा, बिल्कुल दोबारा आएगा। तीन मतलब जुड़ा ही रहेगा, जाएगा हमेशा नहीं, के लिए, हमेशा के लिए। जी बिल्कुल हमेशा के लिए। जी बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बिल्कुल ऐसा ही आपने बिल्कुल सही कहा संपा जी। और यहाँ पे जहाँ जितने भी लोग हैं ऑन पैसिव के वेबिनार्स में सेम पैशन के साथ आते हैं, और सबका पैशन सेम ही है। और अब तक मैं जो कंट्री के जो टॉपिक है, जैसे हमारे 23 मार्च को वेबिनार हुआ था, एक 14 अगस्त को हुआ था, सबसे ज्यादा जो लोगों ने अटेंड किया था वो इंडियंस थे, जिन्होंने वहां पे सेलिब्रेट किया। और यही ऑन पैसिव ने हमें सिखाया है कि वी आर वन। ठीक है, इसी तरह हम आपके वेबिनार में जाते हैं और आप हमारे वेबिनार में आते हैं। इवेंट में आप लोगों की कंट्रीब्यूशन रही है। लाहौर का इवेंट हमारा रिसेंटली हुआ है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे, लेकिन हम थोड़ा पहले रिव्यू ले लें। मयूर जी, आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, तो आपको कैसा लगा आज का शो? सर एक्चुअली आपका शो बहुत दिनों से सुन रहे थे हम कि भाई बहुत सारे लैंग्वेजेस आप यूज, जैसे आप फ्रेंच यूज कर रहे हैं, सभी जर्मन लैंग्वेज को अप्रोच कर रहे हैं। तो ये लैंग्वेज बैरियर, एक्चुअली लैंग्वेज क्या है कि कम्युनिकेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है उसमें। कि हम सुनते हैं कि भाई कि ये ऐसा लैंग्वेज के लिए कोई जाने नहीं जाता, पर अगर हम ऑनेस्टली सुने तो हम सब जन एक जन हो जाए। एक लैंग्वेज हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। मुझे ये लगता है कि हम अगर हमारा बिजनेस करते हैं, हमारा एजुकेशन करते हैं, खाली उसको परस्यू करने के लिए हम करते हैं। हम अगर उसको अगर ऐसा देखा जाए कि लैंग्वेज अगर उसको अलग कर जाए तो अपने को कम्युनिकेशन कैसे होगा। कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज इज गुड गुड मीडियम। सो इसकी वजह से हम ये प्लेटफॉर्म पे अगर हम इतने सारे लैंग्वेजेस हम एक ही साथ हम सबको बता सके तो
हर एक देश को अगर वो पता चलता है कि लैंग्वेजेस इतने सारे हैं, जैसे इंडिया में है, पाकिस्तान में इतने लैंग्वेजेस है कि हम हर 10 किलोमीटर के आगे जाएंगे तो लैंग्वेजेस चेंज होती है थी। तो वो लैंग्वेजेस के बहुत महत्व भी हो सकता है उसमें। और आपके प्लेटफॉर्म में आने के लिए और आपने बुलाया सर, और ममता मैडम ने बुलाया, इसके लिए धन्यवाद सर। ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हम आपने हमको दिया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। जी थैंक यू आपका। और Yes, ये over ओपन to प्लेटफॉर्म है, ICT। ओपन प्लेटफॉर्म है, और आप सब लोग जब मर्जी आ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। और यहाँ पर एक बात जो आपने अगर नोट कीजिए, क्योंकि जब मैंने ये स्टार्ट करने लगा था तो मुझे ये कहा गया था कि 3 डिफरेंट लैंग्वेज होंगी तो आपको लोगों को क्या समझ आएगा। लेकिन आप एक बात नोट कीजिए, अगर कोई मराठी में बात कर रहा है, बेशक वो मराठी में बात कर रहा है, लेकिन हम उसकी बात को समझ पा रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि Yes. कुछ वर्ड्स जो सेम, क्योंकि हमें ऑन पैसिव का इतना पता चल चुका है कि हमें हमें उसका ये किस टॉपिक पे बात हो रही है। तो जैसे कि अभी प्रमोद जी ने वो वर्ड की बात की और जैसे दूसरे जैसे प्रोफेसर साहब ने बात की इंग्लिश में या जो भी है वट, तो हम इवन बंगाली में बात हो रही होती है, हमें समझ आ रही होती है, तो इतना आइडिया हो जाता, तो हमें महसूस ही नहीं होता कि कोई और जुबान, हम बोर नहीं हो रहे होते, हम ऐसा लगता है कि सेम एक ही Exactly. लैंग्वेज में बात हो रही है। तो सबसे खूबसूरत बात है। Exactly. सेकेंडली मेरे पास यहाँ कुछ मराठी में कुछ एक दो गेस्ट आए थे, वो कहते हैं सर हमें स्टार्ट में हमें यहाँ तो ज्यादा सेशन होते हैं या हिंदी में होते हैं या इंग्लिश में होते हैं, मराठी शुरू हुआ था लेकिन वो खत्म हो गया, तो हम कितने अरसे बाद हमें यहाँ पे मराठी में बात करने का, हमें अपनी जुबान में बोलने का मौका मिला है। तो थैंक यू वेरी मच आपका। तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए है जो अपनी बात, अपनी ओन पैसे की बात अपनी लैंग्वेज में करना चाहते हैं। वो कुछ एक दो हफ्ते पहले किसी ने कहा जी वो लैंग्वेज चलेगी, छत्तीसगढ़ की कोई आपकी लैंग्वेज है। मैंने कहा लैंग्वेज कोई भी हो, यहाँ पर पंजाबी, सराइकी और बहुत सारी लैंग्वेज, मेरी मुझे खुशी हो गई अगर नई लैंग्वेजेस यहाँ पर लोग आए, जिसके इंडिया में काफी लैंग्वेज जो मिसिंग है, जैसे केरला है, केरला की जो लैंग्वेजेस हैं, जो तमिल है या तेलुगु है या और इस तरह की और बहुत सारी लैंग्वेज है। और वो आए थे हरीश शर्मा जी, अपनी हरियाणवी लैंग्वेज उन्होंने बात की थी, वो हरीश वो भी हो चुकी है, भोजपुरी हो चुकी, कुंदन जी आए थे यहाँ पर। और इसी तरह मराठी बहुत दफा हो चुकी है, बंगाली बहुत दफा हो चुकी है, क्यों ज्यादा लोग आपको पता है पैसे में बंगाली और ये सामने फ्रंट पर ये आते हैं, मराठी आते हैं, तो ये हो चुकी है। तो मैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लैंग्वेजेस भी हों न्यू गेस्ट के साथ, बट और न्यू लैंग्वेजेस भी होनी चाहिए जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं जो रह गई हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो लोग फाउंडर हैं जो दूसरी लैंग्वेजेस में, आप उनको भी इस प्लेटफॉर्म में लेकर आए, मोस्ट वेलकम। तो नेक्स्ट जिनका ताल्लुक भारत से है और नाम भी भारत है, तो सर आपको कैसा लगा आज? हेलो जी भारत जी। सर, आवाज आ रही? जी बिल्कुल क्लियर। अच्छा, थैंक यू सर। एक्चुअली मुझे कल जब मैडम ने बताया कि हमें वसीम सर के प्लेटफॉर्म पे जाना है, तो इसके लिए आपको सॉरी कॉल आ गया। आप क्या चाहते हैं, मतलब वेल ठीक है मैडम, हम लोग रेडी, क्योंकि मैडम ने हमें पिछले कुछ दिनों से प्रिपेयर करके रखा है कुछ चीजों के लिए, कि वो बहुत अच्छा गाइडेंस करती है हमें कि हमें आगे चल के करना क्या तो है ना। और हाँ और मैडम हमें मुंबई के इवेंट में भी लेके गई थी हमको, उन्होंने हमें अच्छा। वापस जाने का भी मौका दिया था। तो धन्यवाद मैडम को, बहुत सपोर्ट करती है हमको, हमारी बड़ी दीदी है ममता दीदी। और दूसरी बात, जब मैं आपसे यहाँ पे कनेक्ट हुआ, आपका देखा तो मेरा प्रेशर मतलब चला गया। आप बहुत स्वीट हो, आपका फेस बहुत स्वीट है, देखा तो आप बहुत हैप्पी लगते हो, तो मतलब वो प्रेशर रहा नहीं है मुझे, रसगुल्ला। तो एकदम मैं नॉर्मल हो गया। और ये सब जो लोग हैं प्रमोद, तो यहाँ पर एक्चुअली सिस्टर ये पहली बार हम उनसे मिल रहे हैं। बहुत कंफर्ट माहौल रखा है मैंने यहाँ पर। कोई जी 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 अक्सर लोग ये प्रेशर बात नहीं आते यहाँ पर कि पता नहीं ये फॉर्मेट देख के ना कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये कोई इतना इशू नहीं है। अगर मैं बीच में मुझे खुशी होती है जब मैं किसी को बताता हूँ, सिखाता हूँ। तो और आई थिंक जो एक दफा आप जो अगर इस शो में आए तो आपको
नेक्स्ट शो में आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि हमें किन Yes, चीजों sir, पर yes, फोकस sir. करना है, ये चीज है। तो बाकी मैं बहुत जरूर दूसरे लोग जो वॉच कर रहे हैं उनके लिए भी ये होता है कि वो नेक्स्ट अगर वो एज ए गेस्ट या होस्ट बनेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारे एक और गेस्ट है रमेश जी, जिनको हम लेने चाहिए, उनसे भी हम रिव्यू लेंगे। तो वो अब इसका पार्ट नहीं बन सकते, लेकिन उन्हें अब अंदाजा हो गया कि उन्हें किस चीजों का ख्याल रखना है। क्या करना है, जी जी। क्या करना है। तो हम जी। अब नेक्स्ट जो दूसरे हमारे गेस्ट बैठे हैं उनकी तरफ जाते हैं। तो मैं एक मिनट में जरा ऑप्शन में ओपन कर दूं सबकी। जी रमेश जी, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं जी, बात कीजिए। आपको कैसा लगा आज का शो? आपने पूरा वॉच किया? सर आपका शो काबिल तारीफ है सच में। मतलब आपने सबके भावनाओं को एक प्लेटफॉर्म में लाके एक साथ ही सब, मतलब ये ऑन पैसिव का जुनून पागलपन जो है जी उसका एहसास करा दिया आपने। और इसके लिए मतलब जो भावनाएं होती है कि एक दूसरे से बात करने की, लेकिन जो इसमें बेसिक अगर अर्थ मालूम हो जाए तो बाद में चाहे लैंग्वेज कोई भी आ जाए, उस बॉडी लैंग्वेज से उसको कहना क्या चाहता है, उसका इंटेंशन क्या है, क्या उसको मतलब भावनाएं क्या, वो खुद आदमी समझ जाता है। तो आपको बुनियादी मतलब बेस बनाने के लिए अपना ये शो बहुत ही काम आएगा और इन फ्यूचर भी सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। मुझे भी आपके शो में आके मतलब काफी अच्छा लगा। मैंने शो स्टार्ट से एंड तक मैंने देखा हूँ और काफी अच्छा लगा आपका शो। जी, थैंक यू वेरी मच रमेश जी। और बाकी है कि मेरा ये शो, मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव पाकिस्तान। और मैं यूट्यूबर नहीं हूँ जैसे प्रोफेशनल यूट्यूबर होते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा डेली वीडियो बनाता हूँ। बट मेरा जो मोटिव है, मैं एक ऑन पैसिव का रिकॉर्ड बना रहा हूँ, जैसे लैंग्वेजेस शो के ज़रिए या इंटरव्यू के ज़रिए। और ताकि क्योंकि मुझे पता है कि ये सब सेलिब्रिटीज़ बनने वाले हैं जिनके मैं इंटरव्यूज ले रहा हूँ, और बाद में ये लोग हाथ नहीं आएंगे। तो इतने बिजी हो जाएंगे। तो ये तो कोशिश की है कि वेबिनार्स के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू या किसी भी फॉर्मेट में हमने ये करना है। तो थैंक यू वेरी मच आपका। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रिकॉर्डिंग जो होंगी तो आपको, आप ग्रुप में है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में रमेश जी? हाँ जी, हाँ जी, तो आपको यस। ये लिंक वगैरह, टाइम वगैरह बता दी जाएगा, तो आप ज्वाइन कीजिए। और हमारा अपना शो है, हम कभी भी गेस्ट बन सकते हैं, कभी भी होस्ट बन सकते हैं। तो इसमें कोई बिल्कुल सर, आपके लिए और हम आपके लिए हमेशा सदैव उपलब्ध रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। प्लेटफॉर्म वन पैसिव से देता है उससे सीखने को मिलता है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी थैंक यू वेरी मच। गौतम विश्वास जी, ये भी माशाल्लाह हमारे काफी वेबिनार में यहाँ पर शो में आ चुके हैं। गौतम जी, आज का शो कैसा लगा? गौतम जी हमारी बैक सपोर्ट है, वो कभी भी हमारे शो का हिस्सा बनते हैं, जैसे संपा जी हैं, लाइक डेट। जी गौतम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलो जी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जी, जी गौतम। हाँ सर, सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं। जी बात कीजिए। जी, आज का शो कैसा लगा आपको? एक्चुअली अनम्यूट ऑप्शन थोड़ा सा लेट मिला, नहीं, ऐसा मेरे वो स्क्रीन पे आया तो एक्चुअली वो अनम्यूट ऑप्शन हमने खुद ही म्यूट किया हुआ था, ताकि जो हमारे होस्ट और गेस्ट हैं, तो होता है जब कोई गेस्ट ज्वाइन करता है तो माइक ऑन होता है तो डिस्टरबेंस होती है, रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए हम ये रिव्यू बाद में लेते हैं और अनम्यूट कर देते हैं बाद में। तो इसलिए सॉरी फॉर दिस। तो थैंक यू सर, मुझे रिव्यू के लिए बुलाया। मैं गौतम विश्वास, इंदौर एमपी से मैं हूँ, और मैं इस शो में पहले भी एज ए पार्टिसिपेंट मैं आ चुका हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आप जो यश सर का एक मिशन विशन है, जैसे उन्होंने पूरा दुनिया को एक प्लेटफॉर्म में लाने की सोच रहे हैं, और आप दुनिया की हर व्यक्ति को लैंग्वेज के द्वारा एक जगह में आप लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा, हमारा मैम ममता कुलकर्णी जी है। तो मैं उनके बहुत बड़ा फैन हूं, और उनके जो चेहरा में जो विनम्रता है, तो आने वाला समय में जो अगर कोई मेरा कोई फ्रेम या वॉल बनेगा, उसमें एज ए लेडी के हिसाब से मैं उनको सबसे पहले रखूंगा कि ममता दीदी के जो चेहरा है और उनके जो भाषा शैली है, उससे लोगों को दुनिया की जो वोमेन फाउंडर है उनको कुछ सीखना चाहिए, मैं ये कहूंगा। और दूसरी एक बात है कि हम अभी जो है ऑन पैसिव फाउंडर है,
तो हमारे आगे जैसे मैं एक बिजनेसमैन, मतलब मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर से भी बेहतर अगर मेरे आगे अगर कोई चीज लग सकते वो है फाउंडर। तो अगर मैं अनपेसिव का फाउंडर हूं तो इससे मेरा बड़ा जो डेडिकेटेड एक नेम मेरे आगे लग चुका है, ये मैं समझता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ा ये नेम है। तो मेरे आगे पीछे जो भी छोटे मोटे जो डिग्री वगैरह थे वो मैं उसको एक माइनर में रख के इसको सबसे पहले लगाना चाहता हूँ। तो पर जब मैं इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म में आ गया हूँ, मेरे चेहरा में, मेरे हाव भाव में, मेरे बातों में, मेरे हर चीज में वो खुशी और वो एक्सप्रेशन आना चाहिए, एक वो जेंटली, एक पोलाइटली चीज आना चाहिए जो कि मैं फील कर रहा हूँ। तो ये चीज मैंने थोड़ा सा मैसेज भी किया था कि जो भी पार्टिसिपेट या करेंगे तो अपने चेहरा में जरूर वो चीज फ्लो ओवर होना चाहिए कि जब मैं वाकई में एक ऐसी जगह में आऊं, मेरे बातों के अंदर वो एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मैं कुछ दम के कोई खम के कुछ चीज मैं बोल रहा हूँ। तो सर मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपके शो, क्योंकि मैं अभी क्लिनिक में बैठा हूँ इसलिए मैं लैपटॉप में नहीं आया, मैं बैकग्राउंड भी नहीं लगा पाया, अभी मेरे पास पेशेंट भी है। तो मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, जैसे आपने लाहौर इवेंट किया है, आपने दुनिया को बता दिया इतना शरीफ और शालीन तरीका से जो आपने इवेंट किया है, और बॉम्बे इवेंट भी ऐसे ही था, बिल्कुल प्रॉपर एकदम। जो हम कोई यात्रा प्ले करते ना ड्रीम, तो उससे पहले हम रिहर्सल करते। तो बॉम्बे वाला इवेंट भी पूरे रिहर्सल के साथ में हुआ और लाहौर इवेंट भी पूरी रिहर्सल के साथ में हुआ। तो आपको मैं हेड्सअप करता हूँ, मैं अभी ओपन नहीं कर सकता, मेरे पेशेंट बैठे हुए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आई एम वेरी ग्लैड टू यू, वी आर सो इन इट टू इन इट। We are so in it to minute. Thank you गौतम जी, अपनी शेयरिंग रखने का। आप बिजी थे लेकिन आपने अपनी शेयरिंग रखी। नेक्स्ट मैं हमारे साथ साइमा जहाज है, फैसलाबाद पाकिस्तान से। ये लाहौर इवेंट में उन्होंने फिजिकल शेयरिंग भी रखी थी। आने वाले दिनों में आप उन्हें देखेंगे भी, बहुत अच्छा बोलती हैं। जी साइमा जी, आप कैसा लगा आज का शो? आपने पूरा वॉच किया है? जी अस्सलाम वालेकुम सीमे, वालेकुम क्या हाल है अस्सलाम। आपका? वालेकुम ठीक है। अस्सलाम। और तमाम जो पैनलिस्ट हैं, जो स्पेशली ममता जी, संपा जी और जितने भी गेस्ट थे, सब ने बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा जो है ना, वो अपना इंट्रोडक्शन भी बहुत अच्छा था और अपने व्यूज जो उन्होंने दिए वो भी बहुत अच्छे थे। और शो मस्त जो है ना, वो आपका हिट है, शो हिट है, इसमें कोई शक नहीं है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना ऑन पैसिव के साथ जुड़े हुए हैं और डिफरेंट जगह के लोग, सब लोग जो है ना वो एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, ये देखकर बड़ी खुशी होती है। चलिए चलिए, आप आई थिंक हमारा अभी तक शो का हिस्सा नहीं बनी आई थिंक, तो मैं चाहूंगा कि आप नेक्स्ट हमारे शो का हिस्सा बने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी थैंक यू वेरी मच आपका। हमारे साथ शेख गयासुद्दीन साहब हैं इंडिया से। जी सर, आपने शो वॉच किया, आपको कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे आपके इस चैनल में जितने भी लोग आए हैं, मैं सबको आदर सम्मान करते हुए, नमस्ते करते हुए आपके शो के बारे में बताना चाहता हूं कि मैं आपके शो में पहले भी आ चुका हूं, हम लोग कर चुके हैं, और मैं होस्ट नहीं किया है। मुझे ये बनाया गया था अपन 2 जन 3 लैंग्वेजेस में, तो उस वक्त मुझे भोजपुरी तो आती नहीं थी, बट मैं फिर भी इस शो के लिए भोजपुरी लैंग्वेज को चूज किया था और भोजपुरी से मैंने बात करा था। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा है। और इस चैनल में मैं जिन जिन नए नए चेहरों को देख रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। खास करके मैं ममता कुलकर्णी जी को भी देख रहा हूँ, बहुत नए नए लोग इस चैनल में आए हैं। तो सर मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि आपने इस प्लेटफॉर्म को चालू करके बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और जो लैंग्वेज की जो समस्याएं हैं, इसमें क्या है, लोग लैंग्वेज तो सब अपने अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, और हमारे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, अधिकतर पाकिस्तान में आपका उर्दू लैंग्वेज चलती है, हमारे इंडिया में हिंदी लैंग्वेज। तो हमारे हिंदी लैंग्वेज पे, मेरी लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज हिंदी का है, बट हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस है जो। जी आपकी आवाज, जी गयासुद्दीन साहब की आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो गया आप। सर एक फोन आ गया था। जी जी कोई बात नहीं, जी कंटिन्यू कीजिए। तो आप इस प्लेटफॉर्म आके हम लोगों के साथ और मान को आगे बढ़ाया है सर, तो इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं आपको। और दूसरी बात यह है कि आप एस सर के बताए हुए नक्शे कदम पे चल रहे हैं, कि हमारे एस सर का जो सोच है माशाल्लाह, हम लोग सब
और उसी तरह से वैसे ही उसी तरह से आप उनके नक्शे कदम को पकड़ते हुए आप इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं स्पेशली थैंक्स देना चाहता हूं अपने ऐश मुफारे सर को कि उसने हम लोगों के बीच इस प्लेटफॉर्म को लाया। अगर वो इस प्लेटफॉर्म को नहीं लाते तो आज हम लोग इस तरह से, आप पाकिस्तान में, हम लोग हिंदुस्तान में हैं, सब एकजुट होकर किस तरह से अपनी कंपनी के ही बारे में बात कर रहे हैं, अपने फैमिली के ही बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सोच है, उनकी सोच को भी सलाम करता हूँ। या और ये शो, आपका शो सुपर हिट सर, सुपर हिट डुपर हिट है सर, मस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह आपको कामयाब करे। आप जिस तरह से सोच को रखे हैं, इस सोच को बरकरार रखिए और हम लोग सब आपके साथ हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक वी यू आर इन इट टू विन इट। थैंक यू वेरी मच। वी आर सो इन इट टू विन इट। और मेरी ख्वाहिश है आप सब लोग हमारे आइंदा शो में भी हिस्सा बने, आप तो शो का पार्ट बने। लेकिन आपकी यहाँ प्रेजेंस ही मेरे लिए ऑनर की बात है। बेशक आप बैक ऑडियंस पर हैं, बेशक फ्रंट पर हैं, तो ये मेरे लिए ऑनर की बात है। और स्पेशली आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ममता जी का कि इतने बिजी शेड्यूल में उन्होंने टाइम निकाला, और मेरे लिए ऑनर की बात है। और मुझे तो ये इनकी पर्सनालिटी वो लता मंगेशकर जैसी पर्सनालिटी लगती है, जो आवाज भी उनकी बहुत सुरीली है। और मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट किसी शो में, आज नहीं, आज इनको ट्रबल में नहीं डालेंगे, नेक्स्ट किसी शो में मैं इनसे इसी शो में इनकी वॉइस भी सुनेंगे हम। तो ये प्रॉमिस करती है? बिल्कुल सर, ये होना चाहिए। प्रॉमिस कीजिए ना प्रॉमिस ममता करें, जी। प्रॉमिस कीजिए। हाँ, प्रॉमिस अभी कीजिए। इसके ऊपर एक पॉइंट है कि मैंने मेरा पूरा 8-10 एपिसोड का पूरा जुगाड़ कर लिया था इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का विभिन्न यूट्यूब चैनल के ऊपर 2020 जब हमारा ओह। कोविड सेशन शुरू हुआ। जी लेकिन जब मैं ऑन पैसिव में ज्वाइन हुई और जब मैंने ओनेट के बारे में सुना और हमारे वीडियोस के बारे में सुना, मैंने वो सब बंद करके रख दिया कि मुझे अभी यूट्यूब पे आना नहीं है। एज द वोकलिस्ट आई विल बी कमिंग ऑन ओनली ऑन पैसिव। तो इसलिए मैं Yes. ये सारे शोज यूट्यूब पे जाते हैं तो आई डोंट गो देयर। ममता जी, वैसे मैंने वसीम भाई को तो मैंने एक रिकॉर्डिंग भेजा है हाँ जी, ऑन बिल्कुल। व्हाट्सएप, आई कैन सेंड इट टू यू। हमें लेकिन भी जब सुनना है ना ओनेट मैडम, आएगा हमें भी तो सुनना है। आप ही प्रॉमिस करना कि मैं जितने भी वीडियोस आप लोगों को भेजूंगी वो आप आपके चैनल पे डालोगे। आप मैडम ममता जी हमको की भी आवाज सुनना है ना। सुनेंगे, लता जी को भूल जाएंगे। हाँ ना, हमें भी तो सुनना है पर्सनली। अरे ऐसे यू में पिंग मी, आई विल सेंड इट टू यू माय अभी थोड़ी झलक दिखा दो ना। आई थिंक एक काम अभी करते थोड़ी हैं, झलक दिखा दो। आई थिंक ये सेलिब्रिटी हैं तो हम मिलके इनके लिए पे करते हैं एक। I don't want. Yes. I am hardcore on president. I ममता don't जी, want payment. I ममता जी, don't want. हाँ, ममता जी एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे वसीम सर और हमारे संपा मैम सबने आपसे रिक्वेस्ट किया, मैं भी इन लोगों की तरफ से मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चीज में उस चीज पे उतरे। और चले- क्योंकि हम लोग तो सबसे चले- पहले आपको सुनते थे दिल की बातों में। जब ये YouTube इसलिए- पे नहीं आएगा तब मैं कुछ करूंगी, ठीक है? तो अच्छा, नेक्स्ट टाइम हम एक लोग काम कर लेते हैं, हम विदाउट म्यूजिक सुनेंगे। चलो कोई बात नहीं, नहीं एक आज इंटरव्यू नहीं, कर आज लेंगे। नहीं। जब हम अगले सेशन में आएंगे तो हम जब रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे जो YouTube पे नहीं आएगा तब मैं ओके कुछ ओके बिल्कुल ओके करूंगी। ओके ठीक ओके है, अभी recording ओके ऑफ मैम, कर वो थैंक तो यू। अभी भी हो सकता है। नहीं, अभी नहीं, हाँ, अभी हाँ, बहुत, हाँ। अभी 12:30 बजे तक था। अभी मेरी बाइक को भी मैंने बाहर बिठा के रखा है। चले ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास जी। विकास जी, हाँ। आपका मैसेज भी, मुझे कॉल भी रिसीव हुई कि तो आप मेरी मजबूरी समझ गए होंगे। आप शो में थे, आप कैसा लगा शो डॉक्टर साहब? सी डॉक्टर विकास नमस्कार सर जी। सर कैसा हाँ लगा? नमस्कार सर, यहाँ पर हाँ नमस्कार सभी को। नमस्कार दादा, वेलकम। हाँ नमस्कार दीदी, नमस्कार। हाँ सर, मैं तो क्योंकि मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि अभी मैंने मिस्टर गौतम सर जी को लिखा है कि निर्मल दादा कहा है, संपत दीदी और हमारे रॉयल बंगाल टाइगर गौतम सर यहाँ पर उपस्थित है, तो मैंने टेप से नाप करके देखा, मेरा छाती 56 इंच चौड़ा हो गया सर। 56 इंच चौड़ा हो गया। तो कल हम मोदी जी के मीटिंग में था,
नाजमा दीदी थी, शाहीन मैम थे। मुझे सुनाई दे रहा है सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। हाँ, तो उस समय से मुझे कुछ सीख मिला कि हमेशा बोलने से ही लोग बहुत बड़ा सरदार नहीं हो जाता है, कभी कभी सुनना भी चाहिए। तो कल हमारे इद्रिस मोदी साहब जो हमें सिखाया, तो उनको मैं कल गुरु मान लिया। बोलना नहीं, सुनिए सर। इद्रिस मोदी सर हमारे बहुत ही महान सभ्यता में निरोध सर, आपके मोदी सर से हमने सीखा, सुनना सीखो भाई, चुप रहने से गलत बातें हवा में हवाई। बोली सीखने हेतु हमको लगता है 2 साल, चुप रहे कब सीखने हेतु ताऊ उम्र निढाल। बोलने से कोई विश्व देश जीत ना सका कभी, सबकी बात सुनते हुए नाम कमाए सभी। बोलना तो एक कला है सर, सुनने से होए भला, अधिक की कभी बकने पर फांसी में है गला। वन पश्चिम में बोलने वाले भारत में बहुत, सुनकर सदा कम बोले है, कम दिखा सपूत। जयमुखी का नाम बताए और बताए हम, अनूप कुमार चक्रवर्ती सर्वनंद का नाम। नीरज दलवी सर हमारे, मनोज कार्जी सर, महानंद बाबू है चुप चंदन सहोदर। चंदन सहोदर फिर भी सॉरी सर, एक फोन आ गया था। जयमुखी का नाम बताए और बताए हम, अनूप कुमार चक्रवर्ती सर्वनंद का नाम। नीरज दलवी सर हमारे, मनोज कार्जी सर, महानंद बाबू है चुप चंदन सहोदर। बोलने से हम बचल है, सुनने से सुबोध, सरदारों को सुनते रहो मत करो विरोध। गुरुदेव हम मान लिया है मोदी जी को आज, विकास कहे बोलने से कोई हो सके नाराज। सर आज का शो बहुत बढ़िया, इसलिए मैं मन लगाकर सुन रहा था। और यहाँ पर हमारे पुनः बोलूंगा कि संपा सरकार दीदी यहाँ पर है, हमारे रॉयल बंगाल टाइगर गौतम सर यहाँ पर है। मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा। आज का शो का जवाब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक सर बोल रहे थे कि 10 किलोमीटर बाद हमारा भाषा बदल जाता है, इंग्लिश बोलता है, और कोई गरीब देश के लोग भी अच्छा हिंदी बोलते हैं। भाषा कोई मायना नहीं रखता है कि हमारा भावना क्या है, ये भावना देखना है। और हम तो पीछे से आपका तारीफ करते रहते हैं कि हमारे पाकिस्तान के जैसे वसीम अकरम सर जो 3 लैंग्वेज लेकर के आए हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा जो छोटे छोटे मंच पर, वैसे कोई मंच छोटा नहीं होता है, सभी बड़ा है, सभी प्राउड फाउंडर है, सभी समान है, जैसे हमारे गुजविंदर सिंह ढिल्लों सर बोलते हैं। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि जो छोटे छोटे मंच है वहां से लेकर के हम बड़े मंच पर सभी को सिखाए, सभी को बताए, सभी को परिचय कराए। इसमें मुझे बहुत बहुत आनंद मिलता है। आज मैं देर से आया क्योंकि मेरे को कुछ फिजिकल काम भी रहता है, मैं अकेला हूँ। इतना ही कहकर मैं विरान लूंगा। ओवर टू संपा दीदी, ओवर टू वसीम अनवर सर। नमस्कार। वी आर इन 8 मिनट। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ इसमें। मैं एक बार, हमारी बंगाली में कहावत है, बोबार शत्रु नहीं, मतलब जो गूंगा है उसका कोई दुश्मन नहीं होता। तो दादा थोड़ा कम बोलना पड़ेगा। हाँ जी। और संपा जी, मैं इस बारे में कहना चाहूंगा। तो एक्चुअली जब भी कोई ऐसी पोएम बनती है ना, तो मैं कहता हूँ कि जो हमारे ट्रू फाउंडर्स हैं वो कुछ नाम नहीं है, वो एक लंबी लिस्ट है। अगर आप किसी का नाम सिलसिला शुरू करें, अगर किसी को मिस कर दें, वो ज्यादती है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर ट्रू फाउंडर का मतलब ये नहीं है कि वो उसकी 1 लाख की टीम हो। अगर आपके पास नॉलेज है, जैसे कि आज प्रोफेसर सदेव जी आए थे, उनके मानाली थे, जैसे मयूर जी आए और प्रमोद जी जिन्होंने भी बात की, गौतम जी, ये सब ट्रू फाउंडर्स हैं। और मेरे नजदीक वो सब एक ही लिस्ट में है। हर फाउंडर की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो वो उसको मैं अगर इस शो की बात करें, यहाँ पर
आपको ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन नजर नहीं आएगी। यहाँ पे लीडर ही आ रहे हैं। यहाँ पे अगर ममता जी जैसा बड़ा नाम है जिनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है, तो यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल नहीं है, तो सब एक ही प्लेटफॉर्म में है। तो ये शो की खूबसूरती है। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे साथ मौजूद हैं मिसिज सुनीता राय। मिसिज सुनीता राय जी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है शो में। जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस शो के बारे में? कैसा लगा आपका शो सुनीता जी? जी बिल्कुल, मैं उनको ऐड किया था हमारे इसमें। सुनीता दीदी आइए प्लीज। चलें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो सम हमारे कुछ फाउंडर शाय भी बहुत हैं, तो थैंक यू। थैंक यू। जी जी बिल्कुल जी, प्लीज। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जी जी सबाई को प्रणाम। संपा दीदी थैंक यू हमको बुलाने के लिए। ममता मैम आपको प्रणाम कर रहा है कोटि कोटि। हम जब आपको मीटिंग देखती हूँ, हमेशा आपको देखते रहती हूँ। किसने अभी एक साल ने बताया कि आप भूल गए। थैंक यू मैम, प्रणाम। हम मीटिंग में संपा दीदी को हम लिंक दी थी और इसलिए आप आई। हमको विश्वास है, हम लिंक दी थी तो संपा दीदी ने आई। हम खुश है मीटिंग में आने के लिए। आप सुनीता जी, आप बंगाली में बात करें, ये लैंग्वेज बैरियर। बंगाली में? हाँ, बंगाली में बात करें। ठीक है। আমি সুনিতা রায় গোরখপুর, আমি সুনিতা রায় গোরখপুর থেকে বলছি। আমি 21 জুন 2021 11 জুন আমি পার্টনারশিপ নিয়েছিলাম। আমার ভাই সঞ্জয় সরকার আমাকে দিয়েছিল। আমি খুশ। গৌতম স্যার সবাইকে আমি প্রণাম করছি। আমি এক হাউস ওয়াইফ হচ্ছি। আমি এই এত বড় একটা প্ল্যাটফর্মে এসেছি, আমি জীবনে কোনোদিন ধারণা করতে পেরেছিলাম না কি এত মানে আমাদের এত বড় একটা খুশির দিন আসবে। তাই আমি বহুত খুশ হই। আর সবাইকে বলছি আমাদের আর কোনো চিন্তা নেই। যে আশাটা ছিল আমাদের সবকিছু এখান থেকে পূরণ করতে পারবো এই আশা করি। আমি एक जगह বসেছিলাম, মানে ঘরে নেই, আমি বাইরেই আছি। सुनीता जी ये बताएं, आज का जो शो है ভালো মাসি। हाँ, আমি সবাইকে ভালোবাসি। थैंक यू सर। थैंक यू। बस हमें यही सुनना था। थैंक यू वेरी मच आपका। और आई थिंक हम सबकी शेयरिंग। हाँ, एजाज हुसैन साहब है हमारे साथ हैं, वो जो हमारी। सबाई को प्रणाम। ममता मैम प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। सबाई को प्रणाम। एजाज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये साइमा एजाज जो कि अभी हमारी फाउंडर लेडी, उनके हस्बैंड हैं और ये भी फाउंडर हैं। और ये जरा बात कम करते हैं, वैसे भी औरतों के सामने तो वैसे भी हम शरीफ आदमी कम ही बात करते हैं। अभी तो मुझे संपा जी की जो एक उन्होंने जो बताया ना प्रोवर्ब, जो कहावत सुनी है, तो उसके ऊपर काम करना चाहिए ना वसीम भाई। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सही बिल्कुल कह रहे हैं। एजाज साहब आप सुन पा रहे हैं? वालेकुम सलाम। कैसा लगा शो आपका? बहुत अच्छा शो था, मैंने देखा। और सबसे खास बात इसकी ये है कि लैंग्वेजेस सुननी पड़ रही हैं, इसको पता चलता है। थोड़े थोड़े लफ्ज तो पता ही होते हैं किसी न किसी को, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो नहीं समझ आ रही, तो बहरहाल वो आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएंगी। मैं अपना तारुफ करा दूं, मैं एजाज हुसैन, फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक है। मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और मैं इस वक्त रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। बाकी पहले जब मैं यंग था तो मैं पाकिस्तान आर्मी की तरफ से हॉकी खेलता था, तो आजकल बस हॉकी देखता हूँ। ये मेरा तारुफ है। जबरदस्त है। और आप ऑन पैसिवियंस हैं, और ज़ाहिर है ऑन पैसिवियंस कोई भी रिटायर्ड नहीं होगा। और हमारे साथ ये दिलीप बिस्वास जी हैं, वो पहले उन्होंने ज्वाइन किया था और लेफ्ट करके तब दोबारा रीज्वाइन किया है। जी दिलीप जी,
आप जी थैंक यू एजाज साहब। दिलीप साहब आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर, আমি দিলীপ বিশ্বাস महाराष्ट्र पुणे से बात बोलतो। जी मी गौतम सर हात धरून इथे आलो अनपेसिफिक प्लॅटफॉर्मला এবং 1 वर्ष 3 महिने झाले माझे आणि बरं वाटते जे सर आपल्यासाठी काहीतरी करतील এবং आपले जे मनातली इच्छा जे माणुसकीचे काम करायचे माणूसची सेवा करायचे ते आपले पूर्ण होईल असं वाटते। जी थैंक यू वेरी मच दिलीप साहब और आपका शुक्रिया। और हम चाहेंगे नेक्स्ट हमारे शो का पार्ट भी बने और नए नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक ये ममता जी इस बात से एग्री करेंगी कि हमें ये फेसेस और वेबिनार में नजर नहीं आए। यस नहीं ये सारे के सारे नए हैं, ऑन पैसे में पुराने हैं, लेकिन किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आए थे। और मैं चाह रही थी कि ऐसे प्राउड फाउंडर है हमारे यहाँ की जिन्होंने वेबिनार्स को सुन के अपनी इतनी तैयारी की है कि उनका प्रस्तुतिकरण बहुत जरूरी है। और इसीलिए मेरे चैनल पे भी मैंने इनको इनवाइट किया और उनको जर्नी शेयर करने के लिए कहा। वैसे अभी लगे हाथ तो आपके यहाँ मैं हूँ, तो मैं बता दूं कि मैं भारतवर्ष के जितने भी फाउंडर है उनको प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ, क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों को और अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें खुद की शेयरिंग और खुद का विजन बता सके। यस और आप भी आइए प्लीज। तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये है कि एक प्लेटफॉर्म सबको मिल रहा है, आपके द्वारा भी यहाँ पर हमारे सारे जो भी आज के प्राउड फाउंडर है, आपने तो देखा ही होगा कि उनका डिलीवरी और उनके जहन में इतनी क्लियर है बात ऑन पैसे के बारे में कि इधर उधर भटकने की कोई संभावना ही है नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोग बिल्कुल आगे आए और उनको स्टेज मिले और वो नित्य निरंतर रूप से किसी ना किसी प्लेटफॉर्म में जाके अपनी शेयरिंग दे। तो ये ऑन पैसे कितनी बड़ी है, वही चेहरे अगर हमेशा बोलते रहेंगे आते रहेंगे, नए आएंगे तो इतना बड़ा परिवार है ये सिद्ध हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि यही नहीं, मैं खुद भी सारे प्लेटफॉर्म पे से जंप करती रहती हूँ, इधर से उधर जितने भी फ्रेंड्स में आते हैं मैं वेबिनारों में जाती हूँ, सुनती हूँ, कभी कभी शेयरिंग भी करती हूँ। अच्छा लगता है, ये हमारी बड़ी फैमिली है। बहुत अच्छा बोलती हैं आप और आपको सुनना हमें अच्छा लगता है। और आई थिंक टाइम काफी हो गया है, लेकिन हमारे साथ गौतम ने हैंड रेज किया है, हम उनकी शेयरिंग सुनेंगे, उसके बाद शो को क्लोज करेंगे। जी गौतम जी क्या कहना चाहेंगे? सर एम आई ऑडिबल? जी बिल्कुल वेरी ऑडिबल। सर मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि एम्पावरिंग ऑफ वुमेन मतलब एक 3 लैंग्वेज वाला आप शो करिए जिसमें एम्पावरिंग ऑफ वुमेन, केवल वुमेन को आप आगे रखिए क्योंकि लेडीज फर्स्ट। और इससे क्या हुआ कि हमारा समाज में एक बहुत बड़ा गलतफहमी है कि लेडीज केवल चूल्हा चक्रा चलाने के लिए, घर संभालने के लिए है। तो मैं चाहूंगा उसमें ममता दीदी बिल्कुल आप फर्स्ट हैंड पे रहे और आप चूज करके भारत के जितने भी बड़े बड़े हमारा जो लेडी फाउंडर है उनको लेके हमारा वासिम सर के ये प्रोग्राम को आप मोटिवेट करिए और हम उसको पूरे दुनिया में सब दूर चढ़ाएंगे। क्योंकि मैं भी एक समाज सेवा का काम करता हूँ और दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा भारतीयों या पूरे दुनिया की लेडीज कभी किसी के पीछे नहीं है। और ये हम एस सर की मीटिंग से भी जानते हैं क्योंकि जो हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार होता है वो भी हमारा लेडीज ही संचालन करती है, जो हमारा जूली मैम है, सुजी मैम है। तो मैं ये मैसेज आपके द्वारा भी जाना चाहिए, दिस इज द मैसेज ऑफ योर 3D लैंग्वेज प्लेटफॉर्म। थैंक यू ओके थैंक यू गौतम जी। और बिल्कुल आप मैं एग्री करता हूँ उससे। और मैं कहता हूँ ये आपका शो है, आप शो कीजिए, ये बनाए शो। और अगर आपको याद हो लाहौर इवेंट में हमने उनको एक सॉन्ग्स भी डेडिकेट किया था, विमेन एम्पावरमेंट की बात की थी, उसके में मैंने बात भी की थी। तो हम ये चीजें साथ साथ करते भी रहते हैं अपने अपने तरीके से। और अगर आप देखें तो वाराणसी का आई थिंक इवेंट था जो विमेन एम्पावरमेंट पे था बिल्कुल पूरा। तो ये चीजें हो रही हैं और ये ऑन पैसिव ने हमें ये चीजें रियलाइज करवाई हैं, इन चीजों को आगे लेके आने के लिए। ऑलरेडी हम ये चीजों लेकिन कहते हैं ना एक्सप्रेस करना चाहिए।
तो इससे जरा हौसला मिलता है, इंकरेजमेंट होती है। तो थैंक यू वेरी मच आप सबका, गौतम जी आपका, ममता जी, सब आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट किसी शो में हाजिर होंगे। और We are so in it to win it. we are so in it to win We it. are so in it to win it. Bye bye.